آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سینٹ اجلاس میں شور شرابہ، اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی۔ سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں آج شدید شور شرابہ ہوا، اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی بھی کی۔ پی ٹی آئی سینیٹرز نے چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے رضوان غلزئی سے۔ جی رضوان، سینٹ اجلاس میں آج کیا ہوا؟ دیکھیں، سینٹ اجلاس جیسے ہی شروع ہوا تو حسب معمول، کیونکہ جب سے سینٹ کا اجلاس اعظم سواتی کی گرفتاری کے بعد جب بھی ہوا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے جو ان کے سینٹرز ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے اور ایوان کی کارروائی انہوں نے اپنے احتجاج سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کارروائی آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی اور مسلسل جب بھی اجلاس ہوتا تھا تو وہ اجلاس ملتوی کیا جاتا تھا۔ آج بھی اسی طرح ہوا، سینٹرز نے اسپیکر جو چیئرمین سینٹ کا ڈائس ہے اس کا گھیراؤ کیا اور ساتھ ہی کورم کے ادارے بھی لگائے۔ پھر پی ٹی آئی کے سینٹر فیصل سلیم نے کورم کی نشاندہی کی۔ جب گنتی کرائی گئی تو کورم پورا تھا اور اس کے بعد جس مقصد کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا، جو اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل ہے، اس کی شکوار منظوری لی گئی۔ حکومتی ارکان موجود تھے، 22 کے قریب ارکان موجود تھے اور 22 ارکان نے اس بل کے حق میں جی بہت شکریہ رضوان غلزئی، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پی ٹی آئی سینیٹرز نے چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس، گورنر کے اقدام پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے۔ اپوزیشن گورنر پنجاب کے خلاف قرارداد سے پہلے ایوان سے واک آؤٹ کر گئی۔ میاں اسلم اقبال نے ایوان میں گورنر پنجاب کے خلاف قرارداد پیش کی، حکومت نے قرارداد منظور کر دی۔ اس حوالے سے تفصیلات کیا ہے، میاں اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا، قرارداد پیش کی گئی؟ جی بالکل، میں اس وقت پنجاب اسمبلی کے بالکل باہر موجود ہوں۔ آج پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس شروع ہوا اس میں گورنر پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے اس کے خلاف قرارداد مذمت جو ہے وہ پیش کی گئی، جس پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے ہی جو ہے وہ واک آؤٹ کر لیا، جبکہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ پاس کر لیا۔ اس قرارداد میں جو ہے وہ گورنر پنجاب کے اقدام کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ گورنر پنجاب کے اس اقدام سے جو ہے وہ جمہوریت کی نفی ہوئی ہے، آئین کی نفی ہوئی ہے، قانون کی نفی ہوئی ہے، اس لیے جو ہے وہ اس احکام کو نہیں ماننا چاہیے۔ اسی قرارداد میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کو اپنی مکمل سپورٹ کا جو ہے وہ اعادہ کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ راجہ بشارت نے جو ہے وہ گورنر پنجاب کے خلاف تحریک استحقاق جو ہے وہ پیش کر دی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ گورنر نے یہ نوٹیفیکیشن کر کے جو ہے وہ ایوان کا تقدس مجروح کیا ہے، اس لیے اس استحقاق کی جو قرارداد ہے اس کو استحقاق کمیٹی کے سپرد کیا جائے اور گورنر پنجاب کو پنجاب اسمبلی میں طلب کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی جو ہے وہ کام کیا۔ جتنی دیر یہ قراردادیں پیش ہوئی اس سے پہلے جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں اور اراکین اسمبلی ایک دوسرے کے سامنے نعرے بازی کرتے رہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے، حتیٰ کہ گالیاں تک جو ہے وہ دیتے رہے، جس پر اسپیکر کو بار بار مداخلت کرنا پڑی اور اسپیکر نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ بیچ باچ کرایا۔ مسلم لیگ نون کے اراکین جو ہے انہوں نے اسپیکر ڈائس کا بھی گھیراؤ کیا اور انہوں نے جو تحریک انصاف کے اراکین تھے ان کے سامنے جو ہے وہ ڈائس پر آ کر نعرے بازی شروع کر دی، جس پر 3 دفعہ جو ہے وہ اسپیکر کی جانب سے وارننگ دی گئی۔ اسی دوران جو ہے وہ اجلاس ملتوی بھی ہوا اور دوبارہ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ بٹھا کر جو ہے وہ اجلاس دوبارہ چلایا گیا۔ نازیبا الفاظ بھی اسی اجلاس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بار بار کہے، جس پر بار بار جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ان الفاظ کو جو ہے وہ حذف کروایا کارروائی سے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک مہذب معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس طرح ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اس طرح کے غلیظ جملے جو ہیں وہ کستے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے۔ اسی دوران جو ہے وہ اجلاس کی کارروائی جاری تھی کہ اجلاس جو ہے وہ سوموار کی دوپہر 2 بجے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا اور جب ایوان سے باہر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کے اراکین اور نون لیگ کے اراکین آئے تو وہاں بھی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی اور بھرپور احتجاج کیا۔ جی بھرپور احتجاج کیا گیا۔ میاں اسلم اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ہم نے پنجاب میں اپنا آئینی حق استعمال کیا، رہنما نون لیگ رانا مشہود کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پنجاب میں اپنا آئینی حق استعمال کیا۔ رانا مشہود نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کابینہ تحلیل ہو چکی، بل کیسے لا رہے ہیں؟ رانا مشہود نے یہ سوال بھی کیا۔ ہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہائی کورٹ میں کیس ہے، عدالت نے کہا انڈر ٹیکنگ دیں، آپ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، رانا مشہود کی جانب سے کہا گیا۔ آج 23 تاریخ ہے، توڑو کے پی کے کی اسمبلی تم نے کہا تھا۔ آج 23 تاریخ ہے، تم نے کہا تھا اسمبلیاں تحلیل ہوں گی،
हमने पंजाब में अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया। हमने तुमसे, तुम्हारे वजीर आला से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लिया जाए तो असेंबली में आके अपने 186 मेंबर दिखाओ। कौन रोक रहा है तुमको? आज का तुम इजलास कर रहे हो तो 186 की काउंटिंग करा देते। आज अभी तक अदालतों ने कहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि अंडरटेकिंग दें कि आप असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको लेना पड़ेगा। आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे तो आप आज चीफ मिनिस्टर नहीं रह गए, कैबिनेट नहीं रह गई। अगले चंद दिनों में नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होने जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब मोनिस इलाही इमरान खान से मुलाकात के बाद पंजाब असेंबली पहुंच गए। मोनिस इलाही की परवेज इलाही के साथ मुलाकात, इमरान खान से मुलाकात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोनिस इलाही इमरान खान से मुलाकात के बाद पंजाब असेंबली पहुंच गए। मोनिस इलाही की परवेज इलाही के साथ मुलाकात, इमरान खान से मुलाकात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोनिस इलाही इमरान खान से मुलाकात के बाद पंजाब असेंबली पहुंच गए और मोनिस इलाही की परवेज इलाही के साथ मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में चौधरी शुजात के घर पहुंच गए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म और चौधरी शुजात का पंजाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर, ये मुलाकात हुई है लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म और चौधरी शुजात के दरमियान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंच गए। आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म और चौधरी शुजात हुसैन का पंजाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर, इन्हीं सियासी मामलात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन से। पंजाब की बदलती हुई सूरत हाल जिसमें ये अहम मुलाकात हुई है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। जी नदीम, ये मुलाकात कब हुई, कौन कौन शरीक हुआ और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद से जब लाहौर पहुंचे हैं अपने खुसूसी तैयारे पर, तो वो अपनी रहजगाह जाने की बजाय सीधा चौधरी परवेज इलाही के चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे हैं, जहां पर उनकी चौधरी शुजात हुसैन से तफसीली मुलाकात हुई। इस मौका पर तारक बशीर चीमा, चौधरी सालिक हुसैन और दीगर जो उनके अहले खाना है वो भी इस मौका के ऊपर मौजूद थी। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें फूलों का जो गुलदस्ता है वो भी पेश किया। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान पंजाब की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है और उसके साथ साथ जो पंजाब असेंबली का जो आज इजलास चल रहा था उसके दौरान हुकूमत की जाने से जो वहाँ पर बिल पेश किए गए और गवर्नर के खिलाफ जो करारदाद मंजूर की, इस सारी सूरत हाल के ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से भी इस हवाले से तफसीली मुशावरत करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ इस मुलाकात के बाद अब से कुछ देर के पहले अपनी जो रिहाइशगाह है मॉडल टाउन वहाँ पर पहुँच गए हैं और उसके बाद पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका 1 से 2 रोज में इजलास बुलाए जाने का ऐलान मुतवक्के है। जी बहुत शुक्रिया नदीम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। तहरीक अदम एतमाद आज पंजाब असेंबली के इजलास में पेश की जानी थी। नून लीग ने अपनी दरख्वास्त में कहा, गवर्नर के 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन के बाद वज़ीर आला ओहदे पर बरकरार नहीं रहे। आपको बताते चलें कि तहरीक अदम एतमाद आज पंजाब असेंबली में पेश की जानी थी, जो कि अब वापस ले ली गई है नून लीग की जानिब से। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली है। तहरीक अदम एतमाद आज पंजाब असेंबली के इजलास में पेश की जानी थी, जो कि अब वापस ले ली गई है। नून लीग ने अपनी दरख्वास्त में कहा, गवर्नर के 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन के बाद वज़ीर आला के ओहदे पर वो बरकरार नहीं रहे। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब में हमारी और इमरान खान की हुकूमत है। दुश्मन जितनी मर्जी साजिश कर ले, हमारी हुकूमत कायम रहेगी। वो पंजाब असेंबली में खिताब कर रहे थे। हमारी हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत जो दीन की सरबुलंदी के लिए और जो खत्म नबूवत के हवाले से कानून साजी हुई है, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सादत जो है ये इमरान खान साहब को ख़ास तौर पे और पीटीआई को दी है। और ये हुकूमत अल्लाह ने अपनी आखिरी प्यारी नबी खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अता की है।
اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا. جو دین کا کام کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں دل و جان سے اللہ تعالیٰ پر اور آخری نبی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں الحمدللہ. اور چاہے دشمن کوئی بھی کچھ کر لے یہ حکومت قائم رہے گی انشاءاللہ. کیونکہ ہم کسی سے نہیں مانگتے, ہم کسی سے نہیں مانگتے, اپنے اللہ سے مانگتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے وکیل کا پنجاب اسمبلی تحلیل نہ کرنے کا بیان حلفی دینے سے انکار. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے وکیل کی پنجاب اسمبلی تحلیل نہ کرنے کا بیان حلفی دینے سے معذرت. عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ درخواست گزار سے رابطہ کر کے یقین دہانی کروائیں کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی. خیال تھا کہ یقین دہانی کرائی جائے گی کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی. عدالت کی جانب سے آج اس سماعت کے دوران یہ کہا گیا. وکیل کو مزید 1 گھنٹے کا وقت دے دیا گیا. اس سے پہلے اس کیس کی سماعت ہوئی تھی, 10 منٹ کا وقفہ دیا گیا تھا اور اس کے بعد اب 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ کے وکیل کی پنجاب اسمبلی تحلیل نہ کرنے کا بیان حلفی دینے سے معذرت. عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ درخواست گزار سے رابطہ کر کے یقین دہانی کرائی جائے کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی. عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ خیال تھا یقین دہانی کرائی جائے گی کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی. یہ معاملہ اب لاہور ہائی کورٹ میں ہے. وکیل کو مزید 1 گھنٹے کا وقت دے دیا گیا. بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد ہارون سے. جی ہارون, اب تک کی کیا کارروائی رہی؟ جی بالکل, وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر جو سماعت اب سے کچھ لمحوں قبل دوبارہ شروع ہو گئی اور مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی جو ہے وہ بھی کمرہ عدالت میں پہنچ گیا. اب سے کچھ لمحے قبل جو 2 مرتبہ اس طرح ہوا کہ عدالت نے پہلے 10 منٹ کا وقفہ دیا اور پھر 1 گھنٹے کا وقت دیا بیرسٹر علی ظفر کو, جو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے وکیل تھے. ان کو کہا کہ آپ انڈر ٹیکنگ دے دیں تاکہ ہمارے آرڈر کا جو غلط استعمال نہ ہو, ہمیں یہ شیورٹی دی جائے. تو ہم جب پہلے 10 منٹ کا وقفہ دیا گیا, سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو علی ظفر نے بتایا کہ ان کا رابطہ جو ہے وہ پرویز الہی سے نہیں ہو رہا ہے, اس لیے وہ اس بار سے کوئی انڈر ٹیکنگ نہیں دے سکتے. جس پر عدالت نے انہیں کہا کہ آپ مزید وقت چاہتے ہیں تو لے لیں. انہوں نے کہا جی مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیں تاکہ جو ہے میں اپنے کلائنٹ سے اس حوالے سے ڈائریکشن لے لوں. جس پر عدالت نے انہیں 1 گھنٹے کا وقت دیا اور اب سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ 25 منٹ کے بعد جو سماعت دوبارہ شروع ہوئی ہے. مسلم لیگ کاف کے رہنما جو مونس الہی ہیں وہ کمرہ عدالت میں پہنچے ہیں اور علی ظفر اب دلائل دے رہے ہیں. عدالت نے ابھی ان سے یہ استفسار کیا ہے کہ ہمیں یہ شیورٹی چاہیے کہ ہم جو انٹرم آرڈر ریلیف آپ کو دیں گے اس کا غلط استعمال نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اگر ہم یہ ریلیف دے دیتے ہیں تو آپ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. اگر آپ نے اسمبلیاں توڑ دی تو یہ جو پٹیشن ہے انفیکشس ہو جائے گی. تو اس لیے اس حوالے سے جاری ہے. بہت شکریہ ہارون, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. اسلام آباد میں جلسہ اور کارنر میٹنگ کرنے پر بھی پابندی ہوگی. اسلام آباد کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے. اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. اسلام آباد میں جلسہ اور کارنر میٹنگز کرنے پر بھی پابندی ہوگی. اسلام آباد کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے. شہر کے موجودہ صورتحال کے باعث دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے. اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. اسلام آباد میں جلسہ اور کارنر میٹنگز کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے. اسلام آباد کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے. اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. اسلام آباد میں جلسہ اور کارنر میٹنگز کرنے پر بھی پابندی ہوگی. اسلام آباد کے I-10 سیکٹر میں خودکش دھماکہ ہوا اور اس کے بعد دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. اسلام آباد میں جلسہ اور کارنر میٹنگز کرنے پر بھی پابندی ہوگی. اب ایک عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پرویز الہی کی جانب سے بیان حلفی عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے. اہم اور بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ کو آگاہ کریں کہ پرویز الہی کی جانب سے بیان حلفی عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے اینکر پرسن رحمان اظہر صاحب نے. رحمان اظہر صاحب, یہ بیان حلفی بالآخر عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا معلومات ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ جب عدالت نے ہدایات اس حوالے سے جو ہے وہ ایک شیورٹی جو ہے وہ مانگی تھی جو پرویز الہی کے وکیل تھے علی ظفر ان کی طرف سے, تو اس کے بعد اس بیان حلفی کی جو تیاری تھی وہ شروع ہو گئی تھی اور مونس الہی نے جو ہے وہ عمران خان سے بھی ملاقات کی اور خلاف لیگ کی جو اپنی مشاورت تھی اس کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ یہ پرویز الہی کی طرف سے یہ بیان حلفی جو ہے وہ عدالت کے اندر جمع کرا دیا جائے گا, جس کے تحت جو ہے انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ دی جائے گی کہ اعتماد کا ووٹ لینے تک اسمبلی تحلیل نہیں کی جائے گی. اور یہی بیان حلفی جو ہے وہ آپ سے کچھ دیر پہلے اس کی تیاری ہو رہی تھی اور اب یہ عدالت کے اندر جو ہے
वो जमा करवा दिया गया है, जिसके बाद अब अदालत जो है वो इस केस के हवाले से जो है वो फैसला करेगी। देखिए, बुनियादी तौर पर इसमें जो जहां पर मामला जो है वो रुक गया था वो यही था कि अदालत की तरफ से कहा गया था कि क्या परवेज इलाही इस चीज की श्योरिटी देते हैं कि वो एतमाद का वोट लेने से पहले असेंबली को तहलील जो है वो नहीं करेंगे, जिस पर अली जफर ने उनसे कहा था कि उनका वो मौक्कल से अपने जो है वो राब्ता करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ही जो है वो इस हवाले से कोई जवाब दे सकते हैं। तो अभी इम्कान यही है कि परवेज इलाही की तरफ से अब बयान हल्फी अदालत में जमा जब हो जाएगा तो उसके बाद अदालत इस हवाले से अपना कोई शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जारी कर देगी, जिसमें ये कहा जा सकता है कि गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है, या तो वो गवर्नर जो है वो नोटिफिकेशन वापस ले लें या फिर वो नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल हो जाएगा और कुछ वक्त जो है वो दिया जाएगा परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए। तो रहमान साहब, ये बताइए, क्या परवेज इलाही की जानिब से ये भी अदालत में इस चीज़ की एश्योरिटी करवाई गई है कि वो एतमाद का वोट लेंगे, क्योंकि मामला एतमाद का वोट ही है, उसकी वजह से ही उनको डीनोटिफाई किया गया? देखिए, यही बुनियादी मामला था इमरान, जिसके ऊपर जो है वो अदालत ने आज समाअत की है और गवर्नर की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो फी ली गई थी या उसके अंदर जो जवाब बनाया गया था परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के लिए, वो यही था कि इनको वक्त दिया गया और उस वक्त के दौरान ये एतमाद का वोट नहीं ले सके। आज जो सुबह परवेज इलाही की तरफ जो कानूनी टीम थी उसकी तरफ से जो जवाब जमा कराया गया था उसके अंदर भी ये कहा गया कि एक तो ये इख्तियार जो है वो स्पीकर का है, लेकिन उसके साथ साथ ये नुक्ता भी उठाया गया कि मुनासिब वक्त जो है वो नहीं दिया गया। और इस पर जो है वो अदालत ने उसके बाद जो वकला थे उनकी दोनों तरफ से बात सुनी और फिर बेंच ने जो, क्योंकि फुल बेंच जो था वो इस मामले को सुन रहा था, उन्होंने परवेज इलाही के जो वकील अली जफर, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने इस मामले पर बात की। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलेंगे। ऐसे नहीं होंगे कि वो तनख्वाहें भी दे सके, ये सिर्फ इक़्तिदार से चिमटे में, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी अदारा, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे कोई डोनर एजेंसी हो, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी बाहर चली गई। पिछले 7 माह के दौरान, ये बड़ा अलार्मिंग है जो आपके सामने फिगर रख रहा हूं, पिछले 7 माह की फेडरल हुकूमत के दौरान 6.5 लाख पाकिस्तानी जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, स्किल्ड लेबर वाले थे, सारे बाहर चले गए। कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहता। वजह क्या है? कि उन्हें नजर आ रहा है कि जब तक ये हुकूमत मसल्लत रहेगी हमारा फ्यूचर कोई नहीं है, इस मुल्क के अंदर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये वफाकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार इसलिए रखा हुआ है कि अपने केसेस खत्म कर ले। मुझे बताएं आप सब जो नौकरी पेशा लोग हैं, पिछले 7-8 माह में वफाकी हुकूमत ने क्या रिलीफ दिया आपको सिवाय महंगाई के अलावा? हर घर के अंदर लड़ाई जो है, मियां बीवी की लड़ाई करवा दी इन्होंने। आमदनी उतनी है, अखराजात पहाड़ जितने बढ़ गए हैं, हर घर के अंदर लड़ाई करवा दी है इसने। कोई बच्चों की फीस नहीं दे सक रहा, कोई घर का किचन पूरा नहीं कर सक रहा, कोई मकान का किराया नहीं दे सक रहा, किसी की जेब में पेट्रोल के मोटरसाइकिल के लिए पैसे नहीं रहे, कोई दवाई नहीं ले सक रहा। ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं? ये एक फॉरेन एजेंडा है। मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी कहा है, ये फॉरेन एजेंडा है। और फॉरेन एजेंडा क्या है? कि पाकिस्तान को हमेशा कशकोल उसके हाथ में और वो मांगता फिरे। जब पाकिस्तान 6% शरह नमू से GDP की शरह से तरक्की कर रहा था, तो कौन से ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि इमरान खान को हटाना जरूरी था? आज पाकिस्तान की ग्रोथ नफी में चली गई, मनफी में चली गई, और गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से आजिज आ गया। अगली बात जो मैं बता के जा रहा हूं, बिजली का यूनिट 80 रुपए फी यूनिट करने जा रहे हैं। ये आज की मेरी बात लिख लें। यहां पर लोग मोमबत्तियां और दिए जलाएंगे। अब बिजली का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। जिसका 2000 बिजली का बिल आता था, उसका 8000 रुपया बिजली का बिल आया। और हम ये चाहते हैं, जिन्होंने अपनी जात से बालातर होकर सोचा है, कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए।
और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी होगी जब इलेक्शन होंगे, और जब इलेक्शन होंगे हुकूमत आएगी, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल इस वक्त अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली का फी यूनिट 80 रुपये का होने जा रहा है, लोग मोमबत्तियां जलाएंगे। आपको आगाह करें, पंजाब में अहम डेवलपमेंट हुई है। अदालत ने गवर्नर पंजाब से भी अपना ऑर्डर वापस लेने का बयान हल्फी मांग लिया है। परवेज इलाही की जानिब से बयान हल्फी अदालत में जमा करवा दिया गया है। अहम डेवलपमेंट हुई है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है। अदालत ने पंजाब असम्बली तहलील न करने का बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत दी थी और अब ये एफिडेविट अदालत में जमा करवाया जा चुका है। वज़ारत आला पर बहाल किया गया तो असम्बली तहलील नहीं करूंगा, परवेज इलाही ने अदालत को ये यकीन दहानी करवा दी है। जबकि अदालत ने गवर्नर पंजाब से अपना ऑर्डर वापस लेने का बयान हल्फी भी मांग लिया। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी हारून, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आज बिल्कुल इस तरह है कि लार्जर बेंच ने गवर्नर पंजाब का जो जारी करदा नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया है और वज़ीर आला को ओहदे पर बहाल कर दिया है। अदालत ने तमाम फरीकैन को जो है वो नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी तक के लिए जो समाअत मुलतवी कर दी है। अब से कुछ लम्हे कबल ये अदालत ने अपना फैसला सुनाया जिसमें अदालत ने गवर्नर पंजाब के वकील को ये भी कहा कि आपकी जाने से भी हमें अंडरटेकिंग चाहिए, आप हमें बताएं कि आप किस तरह की ऑफर जो है वो इन्हें कर सकते हैं। क्या आप अपना पुराना ऑर्डर वापस लेते हैं और उसके बाद कितने दिनों में जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए इनको कॉल किया जा सकता है। इससे कबल मुनस इलाही भी कमरा अदालत में पहुंचे और बैरिस्टर अली जफर भी मौजूद थे। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि वो अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं कि वो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। इस नुकते के ऊपर अदालत ने 2 मरतबा जो है वो वक्फा किया था, जिस पर अदालत ने कहा था कि अगर हम आपका ये और आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें यह है कि आप हमारे ऑर्डर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर असेंबलियां भी तोड़ी जा सकती हैं। तो क्या आप हमें अंडरटेकिंग देते हैं कि अगर हम आपको इंटरिम रिलीफ देते हैं तो आप असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे? जिस पर पहले बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैं अपने क्लाइंट से पूछ लेता हूं, जिस पर अदालत ने 10 मिनट का वक्फा किया। जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो अली जफर ने कहा कि उनका परवेज इलाही से जो है राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा और उनसे बात नहीं हो सकी है, जिससे जो इंटरिम ऑर्डर है वो अदालत जारी कर देता। हम अदालत ने उन्हें एक दफा फिर कहा कि आप अपने क्लाइंट से पूछ लें, वक्त जो चाहिए आप ले लें, जिस पर अदालत ने उन्हें 1 घंटे का वक्त दिया। इस दौरान अली जफर ने जो है मुलाकातें भी की हैं और वापस अदालत में आकर इस चीज की श्योरिटी दी कि वो अगर अदालत उनको बहाल करती है तो वो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। इस दौरान जो वकील थे गवर्नर पंजाब के खालिद इसाक वो भी अदालत में मौजूद थे और उनसे पूछा गया कि आपकी जाने से क्या ऑफर है, तो उन्होंने कहा कि हम भी ऑफर देते हैं कि हम किसी भी तरह जो है मामला नहीं करेंगे अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। जिस पर अदालत ने कहा कि हमें भी श्योरिटी चाहिए, बैलेंस हम लोगों ने देना है एक ऑर्डर यहाँ पर ताकि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। ताहम अदालत ने अब ये फैसला सुनाया है कि जो बहाल उनको परवेज इलाही को बहाल कर दिया गया है। हारून, ये बताइएगा एतमाद का वोट लेने के लिए कितना टाइम दिया गया है फिर अदालत की जानिब से? अब जी अदालत की जाने से अभी कोई वक्त नहीं दिया गया। अदालत ने सिर्फ ये कहा है कि आप इन रिटर्न कंडीशन में जो है अपनी जो सिफारिशात हैं तमाम वो लिख के ले गए। क्या ऑफर जो है आप इनको हुकूमत को करेंगे, किस हवाले से आप ये तमाम मामला जो है सामने संभालेंगे। अब ये जो सिफारिशात सामने आएंगी तो उसके बाद ही चीजें सामने आ सकेंगी। तो हम अभी जो ऑर्डर जारी किया अदालत ने, कमरा अदालत ने सिर्फ उसको मुअत्तल किया है, उनको बहाल कर दिया गया दोबारा और मजीद इसकी तफसीलात है वो अभी शॉर्ट ऑर्डर के अंदर सामने आ जाएंगी। जी तो हारून, हम ये भी कह सकते हैं कि अदालत ने जब परवेज इलाही को उनके ओहदे पे बहाल किया है तो सूबाई काबीना भी उनके साथ ही बहाल होगी अब? जी बिल्कुल, जिस तरह क्योंकि तमाम जो वज़ीर आला को जिस वक्त डिनोटिफाई किया गया था, ओहदे से बर्खास्त किया गया था, तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने वफाकी काबीना को भी खत्म कर दिया था। अब ये तमाम जो है अदालती अहकामात के बाद जो नोटिफिकेशन थे वो खत्म हो चुके हैं, वो सस्पेंड हो चुके हुए हैं। अब काबीना भी सूबाई बहाल हो चुकी हुई है और वज़ीर आला पंजाब भी अपने ओहदे के ऊपर बहाल हो चुके हुए हैं। अब इन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो मामला है उस हवाले से अभी गवर्नर के वकील की जो सिफारिशात आएंगी, जो ऑफर आएंगी, उस पर मामला दीगर आगे चल के तय हो सकेंगे। जी तो हारून, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अदालत में गवर्नर के वकील से भी कहा गया कि आप भी कोई यकीन दहानी करवाएं, आप भी अपना जो नोटिफिकेशन है उसे वापस लें, उसकी यकीन दहानी करवाएं। तो क्या ऐसी यकीन दहानी उनकी तरफ से कोई नहीं करवाएगी जिसकी वजह से उनका नोटिफिकेशन उससे मुअत्तल किया गया अदालत की जानिब से? जी गवर्नर पंजाब के जो वकील थे उन्होंने अदालत को अंडरटेकिंग फिलहाल नहीं दी और कहा कि मुझे भी इस हवाले से जो है इंस्ट्रक्शंस लेनी है, ताम उसके बाद ही मैं अंडरटेकिंग दे सकता हूं। जिस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, अब ये केस जो है हम सिर्फ नोटिस जारी कर देंगे और आपसे जवाब तलब कर लेंगे, उस जवाब के अंदर आप अपनी तमाम सिफारिशात दे दीजिएगा, वो ऑफर दे दीजिएगा कि जो गवर्नमेंट को के सामने रखी जा सके, इनके वकला के सामने रखी जा सके। अब अदालत ने साथ ये भी कह दिया कि अब ये केस जो है वो
हम छुट्टियों के बाद ही टेकअप कर सकेंगे, जिस पर दोनों जानिब के वुकरा ने कोई एतराज नहीं किया। और अब 11 जनवरी तक जो है वो समाअत मुलतवी हो गई है इस केस की। अब 11 जनवरी से पहले तो किसी भी किस्म का फिलहाल को मामला नहीं होता, लेकिन अभी जो अदालती ऑर्डर सामने आएगा उसमें चीजें क्लियर हो सकेंगी कि अदालत ने आया इनको टाइम दिया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से या नहीं। जी हारून, जैसे कि आप बता रहे हैं 11 जनवरी को इस केस की अब समाअत होगी, तो 11 जनवरी तक हम ये कह सकते हैं ना ही असम्बली तहलील होगी, ना ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, ना ही किसी किस्म की और कार्रवाई होगी इसमें अब? जी बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि अदालत को यही यकीन दहानी करवाई गई है। क्योंकि अदालत ने जो 2 दफा अदालती वक्फा किया था उसके अंदर ये कहा था कि अगर हम आपको इंटरम रिलीफ देते हैं तो आपने फौरी तौर पर जाकर असेंबली तहलील कर देनी है। तो इसके हमें अंडरटेकिंग दी जाए कि आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे, जिसके लिए 2 मरतबा वक्त दिया गया। और फिर आग के मोना सिलाही के मौजूदगी में बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे, जिस पर अदालत ने अभी इंटरम ऑर्डर दिया और गवर्नर पंजाब का जो जारी करदा नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया। अगर ये अंडरटेकिंग ना दी जाती तो अदालत इसके बरक्स कोई और फैसला कर सकती थी। ताहम अब अदालत ने अंडरटेकिंग के बाद जो है वो ये अपना फैसला सुनाया और वज़ीर आला को जो है अपने ओहदे के ऊपर बहाल कर दिया। अब चीफ सेक्रेटरी की जानिब से भी जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें तमाम सूबाई कमीना भी दोबारा बहाल तस्वर की जाएगी। तारुण, अदालत में मोना सिलाही भी तो आए थे, इसके अलावा मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, ये सब लोग आए हुए थे, तो कौन कौन अदालत में इस मौके पर मौजूद था दोनों जानिब से, और उनका क्या रद्द-ए-अमल था इस पर? जी बिल्कुल, अदालत जो है वो सुबह से ही खचाखच भरा हुआ था। इस हवाले से जो है किसी ने भी जो ये तमाम अरकान थे इनमें से कोई भी रोस्टर पे आकर बात करने किसी ने भी नहीं की, क्योंकि इनके वकला यहाँ पर मौजूद है। बैरिस्टर अली जफर ने ही सुबह से लेकर अब तक दलाइल दी। इस दौरान आमिर सईदराज जो परवेज इलाही के वकील थे उन्होंने भी अपने दलाइल देने थोड़े से दिए, लेकिन अदालत ने तमाम जो दलाइल थे और जो तमाम अंडरटेकिंग थी वो बैरिस्टर अली जफर से ली, क्यों अली जफर ने ही तमाम केस को प्ली किया था। अली जफर ने इस दौरान जाकर जो मुलाकात भी की है इमरान खान से और दीगर अहलकारों से, लोगों से, तो उसके बाद ये तमाम बात सामने आई और अब आकर जो उन्होंने अंडरटेकिंग दी इस पोजीशन में वो आए कि वो अब अंडरटेकिंग दे सकते थे। तो अब अंडरटेकिंग देने के बाद जो है ये तमाम मामला किसी तरफ जाके लगे और अदालत ने अब इंटरम रिलीव करते हुए जो परवेज इलाही हैं उनको ओहदे पर बहाल कर दिया है। जबकि इसके साथ साथ ये भी कह दिया गया था कि अब ऑफर जो है वो गवर्नर पंजाब की जानिब से आएगी, लेकिन उनको नोटिस जारी किया गया तमाम फरीकैन को इस पिटीशन के अंदर जिनको फरीक बनाया गया था, जिसपे गवर्नर पंजाब से थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से इन तमाम को नोटिस जारी कर दिए गए और 11 जनवरी तक जो है समाअत मुलतवी की गई है। तारुण, जो बार बार जी कहा जा रहा है कि ऑफर अब गवर्नर पंजाब की जानिब से आएगी, किस किस्म की ऑफर होगी, कितनी आईनी होगी, क्या ये गवर्नमेंट और गवर्नर पंजाब जो है वो आपस में तय करेंगे, ये मामला अदालत में जाएगा दोबारा? जी ये अदालत में ही मामला है। अब जो जवाब तलब किया उस जवाब के अंदर ही वो बताएंगे कि वो गवर्नमेंट को जो है किस किस्म का रिलीफ जो है वो दे सकते हैं और नोटिफिकेशन के हवाले से बातें बताई जाएंगी। अब से कुछ देर के बाद ये रिटर्न ऑर्डर जारी हो जाएगा और उसके तमाम चीजें सामने आ जाएंगी कि गवर्नर से क्या चीजें तलब की गई हैं और वो क्या सिफारिशात जो है वो यहाँ पर अदालत के अंदर जमा करवाएंगे। तो अरुण, ये अभी तो आप बता रहे हैं जैसे कि इंटरम ऑर्डर ही आया है, अगर इंटरम रिलीफ मिल गया है तो ये कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी? 11 जनवरी को क्या चीजें प्रोसेस होंगी और किस तरह से जवाब दाखिल कराए जाएंगे? अब जी बिल्कुल, जो इस पिटीशन के अंदर फरीक थे उन तमाम से अदालत ने उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किया है। अब ये 11 जनवरी को ये तमाम फरीकैन यहाँ पर हाजिर होंगे और लार्जर बेंच के सामने अपने दलाइल देंगे। गवर्नर पंजाब से जो जवाब तलब किया गया वो भी कराएंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान यहाँ पर आके वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि ये तमाम जो सिफारिशात गवर्नर के वकील की जानिब से सामने आएंगी वो वैसे अली जफर जो परवेज इलाही के वकील है इनके सामने रखी जाएंगी। अगर वो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, वरना फिर इसके हवाले से जो है मजीद कार्रवाई आगे चलेगी और फिर मेरिट के ऊपर जो है इस केस के हवाले से तमाम सुना जाएगा कि आया ये नोटिफिकेशन अब जारी किया गया था ये लीगल था या नहीं था, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ इंटरम रिलीफ दिया गया। अदालत ने इंटरम रिलीफ दे के वज़ीर आला को ओहदे पर बहाल किया है। तो अरुण, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो ये ऐलान किया गया था 23 तारीख को वो कर दिया जाएगा, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी।